आई थिंक वो मेरा ट्रिगर बन जाता है जब मुझे कोई चीज कोई ऐसे बोल जाए और रियलाइज होता है कि अच्छा यू थिंक दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट, सो आई विल स्टार्ट डूइंग इट। बट मेरे को ना 1% अपने आप पे डाउट नहीं हुआ, डर नहीं लगा। सो आई थिंक जो फियर खत्म करने वाली बात होती है वो आपकी इंडिपेंडेंस से आपको आती है। मेरे दिमाग में सेकंड थॉट आता ही नहीं है मेरे अलावा। ओके, सो जैसे करीना कपूर कहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज नॉट ओनली पावर पैक्ड, शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड अनस्टॉपेबल. She appeared on Josh Talks, worked with Penguin Publishing House. She has 9 certificates framed in her office. She doesn't stop here. कहानी अभी बाकी है. On top of that, she had a private dinner with guess whom? Akshata Murthy, a wife of former UK Prime Minister. Oh my God, she is such an inspiration. So बिना किसी इंतजार के, let's welcome Shevi Jain to our show. Not just a woman, because we are made of more. Hi Shevi. हाय। शेवी, आपकी कुछ जर्नी के बारे में वांट टू नो. जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम पे, इट लुक्स लाइक यू आर नॉट जस्ट टीचिंग इंग्लिश, यू आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, इन एवरीबडी. व्हाट आई हैव सीन, आई जस्ट वांट टू नो, आई एम रियली क्यूरियस कि ये जो जर्नी थी आपकी, वॉज इट रियली डिफिकल्ट, या जितना इंस्टाग्राम पे ईजी दिख रहा है it's really that easy? I think on Instagram, most of the people post only the good things about your career so that we can inspire, we can ask people to do more in life. तो जो behind the scenes होते हैं ना, वो भी हम happy वाले डालते हैं क्योंकि BTS डालना ज़रूरी हो गया आजकल. But the struggle, when you are crying, you'll never post it. So there are times in your work, in your otherwise life that you struggle with. तो बड़ा ही जो weak moments होते हैं, nobody post about it. So there is it's part of starting a new journey, it's part of starting a business, struggle is there inevitably. तो आपने जब ये जर्नी स्टार्ट करी, सोसाइटी ने आपको जज किया बिकॉज इट सीम्स यू आर टू एम्बिशियस? तो society's judgment, I don't know. I remember one of the person I met and after giving birth to my daughter is like, अब तो काम नहीं करेगी, अब तो छोड़ दे, अब तो हो गया, अब क्या करना, अब इस पे ध्यान दे. So I think those words were rather inserted that fire in me that I started working more. कि नहीं, मतलब she's gonna be my lucky charm, and I think I've proved it right. She actually proved to be my lucky charm, and I have grown tremendously after her birth, rather with more work, more vision, more things. That was your kick. जहाँ पे आज शेवी है, that is the main reason. I think वो मेरा ट्रिगर बन जाता है जब मुझे कोई चीज कोई ऐसे बोल जाए और रियलाइज होता है कि अच्छा you think that I'm not able to do it, so I'll start doing it. I think every woman or every person they need that trigger. If you have that, तो I think आप किसी भी हाइट पे जा सकते हो. True that. आप सक्सेस को किस तरह मेजर करते हो? लाइक इट्स जस्ट अ नंबर्स फॉर यू और द लाइव्स यू टच? आई थिंक सक्सेस की ना डेफिनेशन हर किसी की डिक्शनरी में अलग अलग होती है, एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन और जज दैट. फॉर इफ वी हैव टू टॉक अबाउट मी, माई सक्सेस is never with numbers. I don't even check what my bank balance is all about. So I focus on my growth. So there are so many different things that I'm part of now, not because of numbers, because I see myself as a growing individual. So if anything is contributing to my growth, I feel that's actually my success. That we can see on your Instagram page. Like hats off to you. Like every month I think you have a theme. Yeah, yes, है ना? yes. So yes, I have seen recently it was ocean theme. Yeah. Applause to you. So I think ये ना सब मुझे कहते हैं कि तुझे 10 साल हो गए इस काम में, अब तो तेरा पूरा करिकुलम सेट होगा. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज विद इनोवेशन यू टेंड टू गेट मोर रिजल्ट्स, एंड आई ऑल्सो एंजॉय दैट अबाउट माई वर्क. दैट बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा आइल्स पढ़ा ले, इसमें बहुत बिजनेस स्कोप है, पर मुझे ऐसा लगता है एनीथिंग दैट गिव्स एक्साइटमेंट टू मी एंड आई कैन क्रिएट समथिंग दैट इज राइट नाउ अ ट्रेंड, that makes me very happy. And I think that is the reason I became popular on Instagram, because of following the trend so much. I focus on the real life atmosphere
कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, उस पर कुछ करते हैं. And that's the excitement that I can see in my students as well. तो इसमें आपके हस्बैंड की, आपके इन-लॉज की सपोर्ट कैसे है? Do you get support from them? Of course, that has to be there. You know, मैं अगर मुझे ना सब लोग ऐसे, I travel a lot. I love to go for my courses. I invest a lot in my knowledge. So जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, मुझे DMs आते हैं कि आपको मॉम गिल्ट नहीं होता, आप अपने बच्चे को पीछे छोड़ आए हो. और एक्चुअली मैं सोचूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज आई नो शी इज़ इन सेफ हैंड्स. और जितना मैं उसको दे सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा माई मॉम इन लॉ कैन गिव इट टू हर, एंड शी हैज़ बीन अ ब्लेसिंग. बिकॉज कभी ऐसे आया नहीं कि मम्मी पास छोड़ के जा रही हूँ, मॉम गिल्ट कभी नहीं आया, बिकॉज आई नो दैट शी इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद हर वेल एंड शी वुडंट माइंड. एंड सपोर्ट तो रहता ही है टू यू नो. अब घर में अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हो, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली टू मैनेज थिंग्स, बिकॉज द हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग, द वाइफ इज वर्किंग, सो इट्स समहाउ, बट द इन-लॉज बिकम अ बिग सपोर्ट. जैसे कि सब बोलते हैं एक सक्सेसफुल मैन के पीछे उसकी वुमेन का हाथ है. सो हम ये बोल सकते हैं आपके केस में कि एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक हस्बैंड का हाथ है. Of course, I think I have to give due credit to him, because whenever I'm low, he's the one who is there for me to support me. So बहुत सारी चीज़ें हैं. I always discuss everything about my work at my home with my mom-in-law, with my father-in-law. करना मुझे वही होता है जो मेरा मन कहता है, but I generally take opinions, and I'm happy that I'm in a house that everybody is ready to accept my opinions, my decisions. Even if it's challenging to them, they are open to accepting it. This question is for the women जो भी ये शो देख रहे हैं. जैसे कि आपने बोला कि हाँ मदर गिल्ट नहीं होता बिकॉज योर मदर इन लॉ शी इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड आपको लगता ही नहीं है कि वो मदर के साथ है या मदर इन लॉ के साथ, दादी के साथ है. तो जो वुमेन जिनको ये गिल्ट है अभी भी ट्रिगर करता है, स्टिल दे हैव अ गुड सपोर्ट एट होम, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि ये गिल्ट के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए, या दे शुड हैव अ कॉन्फिडेंस कि उनकी फैमिली अच्छा लुक आफ्टर कर रही है एंड वो ग्रो करे? हाँ, I think one vision that a woman needs to look at is prioritize yourself. If you have given birth to a child, it doesn't mean that you come as a second priority. No, it's always about your life. So you need to prioritize yourself, and then I think when you are seeing that when you will do this, you will attain this in life, your child's going to get better out of it. So when you have that vision and alignment, mom's guilt सब चला जाता है. And you since you are capable of achieving things on your own, you will rather put in more effort to do something extraordinary for your child as well. Okay, so, Shavi, now let's play a quick game. It's a burn or blue. Okay, I will give you this. Interesting. Yeah. See, burn is like जब भी मैं आपको कुछ पूछूंगी, if you want कि हाँ इसको let go करना चाहिए, we should not continue with it, तो आप burn रेज करोगे. एंड अगर आपको लगता है इस चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, देन इट विल बी ब्लू. Okay. So rules are clear. Let's start with it. Yes. Okay. Grammar police. Grammar, I think initially it should be, you should let go. You should start speaking. That's how you gain more confidence. And of course, later on, you have to Blue. Okay. Self-doubt. Burn. Believing in yourself is the key. Instagram validation. Do we need that? I think we can burn it. Because काम करते जाओ, success अपने आप मिलती रहती है. When you are clear with your goals, things will happen automatically. So let it go. Okay. Female friendships. एक तो ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको आप हमेशा नर्चर करो और उसमें इन्वेस्ट करो. बाकी बहुत सारे आएंगे, उनको बर्न कर दो. So what about hustle culture? हसल तो सोच में है ना, तो अगर आप काम को हसल बना दोगे तो वो हमेशा डिफिकल्ट लगेगा. अगर वो हसल नहीं है तो आई थिंक वी शुड बर्न इट. वी शुड बर्न दैट. अदरवाइज इट्स टू शेडी. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. जस्ट कंसीडर इट टू बी पार्ट ऑफ. तो जो ये सोचते हैं 24/7 वी शुड बी वर्किंग ऑल द टाइम, नो डेज ऑफ. कर लो, मजा आ रहा है तो क्या दिक्कत है. ओके. कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स ऑन सोशल मीडिया.
I think if you have a vision of learning something from others' profile, then definitely you should bloom that feeling and compare yourself that how can I be better or what can I learn from this profile. But if you're comparing and feeling that, you know, the emotion of envy or jealousy is coming, I think you should definitely burn it. Using affirmations every day. It's very, very important. It's affirmation word itself gives me goosebumps. So, yeah, we should nurture it. Overthinking before starting something new. I think overthinking is part of womanhood, and we, of course, do not need to nurture it. We should burn it. Wow, that's really nice. You played so well, Shivi. Okay, let's move to Shivi. I have heard कि आपने NLP, you're a certified NLP coach and you are a life coach. What's the difference between NLP coach and life coach? Basically, what they do? So, first of all, I would like to differentiate between most of the people think that a teacher, a counselor, a trainer, and coach, these are synonyms, which is actually not true. So, these are the words. So, training is when you're grasping knowledge out of something. You know, you are teaching a technical skill. So I used to call myself a coach, but then I had to rectify myself because I was a trainer. I was passing on the knowledge that I had to others and teaching them those technical elements of language or confidence or body language, all these things. A coach is your guiding light. It provides you guidance and it helps you find out the resources that are residing in you. So NLP coach, anybody can be a coach, can learn the tricks to guide you, learn the tricks to find answers, help you find answers within yourself. Whereas NLP coach is like using neuro-linguistic programming techniques in making the journey smoother for your clients. Okay. So that is the vision that is there. So if we talk about mental and inner strength, do you feel कि जो mental health है, it should be openly spoken in the classes or coaching institutes? Expression is subjective, you know, it's up to the person whether he wants to express his feelings or not. But yes, when you talk, when you share, you feel lighter, and that's how it should be. The expressions should be there क्योंकि आप हल्का फील करते हो, और अगर ऐसा करने में आपको अच्छा लग रहा है तो करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करो. It's a choice that you make. But mental health as in ये आपने ही डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम क्या है, और उसका सोल्यूशन आप किसी की हेल्प एज इन कोच की हेल्प से ढूंढ सकते हो, बट वो है आपके अंदर ही. सो द आंसर इज ऑल्सो रिसाइडिंग इन यू. सो यू जस्ट नीड टू, कहते हैं ना कि अपने अंदर जाने की जरूरत है. यू हैव टू गो विद इन एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि सोल्यूशन आपको पता है, बस आपकी नज़र नहीं पहुंच रही वहाँ पे. हैव यू एवर बैटल्ड सेल्फ डाउट और एंजाइटी? अरे बहुत बार. आई थिंक ये सबके साथ होता है. व्हेन यू आर वर्किंग एंड व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग वेरी हार्ड और वो होता नहीं है, बट बस वहाँ पे गिव अप नहीं करना है. दैट्स द ओनली क्रक्स. जब आपने इतना हार्ड वर्क करके गिव अप कर दिया ना, दैट्स वेयर यू फेल. जब आपने फेल हो के नहीं गिव अप किया, दैट्स वेयर यू राइज. मीन्स हमें गिव अप नहीं करना. नेवर गिव अप. इट डजंट मीन कि आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यू डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स. या मैं बताती हूँ, एंजाइटी जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव दैट आई वांट टू वर्क ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. सो मेंटल हेल्थ ऑफ इन्फ्लुएंसर का मतलब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हम बार बार इंस्टाग्राम चेक करते हैं टू चेक द व्यूज, टू चेक द लाइक्स. पार्ट ऑफ द गेम है, हमारा प्रोसेस है, हमें करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है. But somewhere when it impacts your rest of your life, that's where the mental indulgence has happened. So you need to work it out. अब मेरे साथ भी एक incident हुआ था. So we did like 500K celebration, 505 हो गए थे हमारे. We did a celebration for that. But I don't know what happened. Instagram ने क्या किया? They were like drop आना शुरू हो गया. So I went to 499, 498, फिर वो 488 आ गया. And it took me 1 week to come out of that zone कि हुआ क्यों. And the moment कि मुझे काम तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स कम हुए तो मुझे काम नहीं आ रहा है, या मेरे बैचेस फुल नहीं है, या मुझे मेरी सक्सेस या मेरे कहीं पे भी कुछ नंबर मैटर किया. बट देन 1 हफ्ता लगा समझाने में कि शायद ज़रूरी है ही नहीं. मतलब
people love my work, people still appreciate, I can still do something. और मैंने जैसी नंबर से नज़र हटाई, वो 1 लाख फॉलोअर्स विद इन 1 डे इट रोज. सो आई थिंक जब हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो नहीं मिलेगा, बस अपना काम करते रहो, चीज़ें अपने आप पीछे भागेंगी. That's true. What's the one scar, emotional or personal, that has shaped the Chevy we see today? बहुत सारे स्कार्स हैं ऐसे. द वन दैट आई फील, सब कहते नहीं हैं, बट कुछ भी बुरा होता है ना मेरी लाइफ में, बहुत चीज़ें, जैसे आई लॉस्ट माई मॉम व्हेन आई वाज 12, सो दैट इज़ द स्कार दैट इज़ स्टिल देयर. आई गेट द फ्लैशबैक्स एंड ऑल दैट. बहुत ही ट्रॉमेटिक मेमोरी है, बट आई थिंक उसी ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया. नहीं तो अदरवाइज आई वुड हैव बीन ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई मॉम एंड वुड हैव डन थिंग्स दैट शी वुड हैव आस्क्ड मी टू डू, वुड नॉट हैव यूज्ड माई ब्रेन. आई थिंक वो चैलेंजिंग टाइम ही तुम्हें एक डायमंड बनाता है. So that's true. Your proudest moment till now? बहुत मैजिक्स हुए हैं, बहुत मिरेकल्स हुए हैं मेरी लाइफ में, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट. वन मोमेंट वेरी प्राउड, मैंने ना कभी जोश टॉक को लिखा था ईमेल कि मुझे जोश टॉक करनी है, तो दे रिजेक्टेड मी. और फिर विद इन अ ईयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम that we want you to be the speaker in Josh Talks. That's one. Wow. Another one is abhi recently 2025 की होगी, I went to JLF, Jaipur Literature Festival, with a very pure vision. खुद पैसे दे के खुद हमने एंट्री जो भी होती है वहाँ पे, we went there and I wanted to meet Sudha Murthy. She's my idol. So went there to meet her. तो एक ना स्टॉल था नारायणा मूर्ति क्लासिक्स बुक्स का. सो आई वेंट देयर. उन्होंने बोला फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, आपको ना एक पोस्ट कार्ड फ्री मिलेगा और यू गेट अ चांस टू विन अ बुक. And I'm a fan of reading books anyway. So मैंने डाल दिया. So looking, the marketing team of their company saw my profile and I got an invite for a private dinner with Murthy's. Wow. So I was there with Akshata Murthy, Sudha Murthy. It was in City Palace, Jaipur. So being with Akshata Murthy and Sudha Murthy in person, like literally not even... that's very close. Actually, that was like I went with the pure emotion and I did not think कि ऐसा कुछ होगा. But the magic happened and I'm ever so grateful for that opportunity. And तो basically the bottom line is कि हर किसी को बस अपना करते रहो. Don't focus कि क्या आ रहा है in return, बस do your best. Definitely it will come. फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल तो मिल ही जाता है अगर आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो. That's true. Okay, let's move to another game that is unapologetically me. It's a quick rapid fire game. Okay, coffee or tea? Chai, any day. Morning person or night owl? रात को तो मैं सो जाती हूँ, मेरे दोस्त भी बैठे हो, मैं उनके सामने सोफे पे भी सो जाऊंगी. So I'm always an early riser. That's good. One guilty pleasure you won't give up? Guilty pleasure, eating noodles all the time. I love it. मैं सुबह breakfast में भी खा के आई हूँ. Oh my god. So still you're so fit. So for 2 months I leave and then. Okay. A stereotype about women you hate? I think women को ना बहुत सारे कहते हैं बहुत emotional होती हैं. They can't take decisions. But I think that's wrong. We are emotional. We are called emotional because we are expressive about our emotions, but that doesn't mean that it interferes in our decision-making power. That's good. A life mantra you live by? Life is a choice. So suffering is universal. Yeah. But victimhood is optional. So no one can make you victim but you. But you. That's true. Books or podcasts? Books, any day. One English word you overuse? Overuse. Yeah. I think smart cookie is a phrase that I use a lot. Oh, that's good. A grammar mistake you secretly hate? Didn't knew. People are किसी ने तो आजकल लिखा हुआ didn't nude. I'm like, oh god. Didn't know and didn't go. कहीं गेम की प्रेपरेशन तो नहीं करके आए हो? You are playing so well, Chevy. Okay, Chevy, let's move to another questions. If you could give one mental health mantra to women who are struggling silently, what would it be?
आई थिंक बहुत सारे ना हम ओवर थिंक करके ना वी पुट लॉट ऑफ एनर्जी इन द प्रॉब्लम. सो व्हेन वी स्टॉप पुटिंग एनर्जी इन द प्रॉब्लम एंड स्टार्ट पुटिंग एनर्जी टुवर्ड्स द सोल्यूशन, जहाँ पे एनर्जी डालोगे वो ग्रो करेगा. अब आपकी मर्जी है कि आपको प्रॉब्लम को ग्रो करना है कि सोल्यूशन को ग्रो करना है. सो पुट योर एनर्जी सोल्यूशन एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. Okay, message for women who think they are just ordinary, helpless, wants to do something but has a fear of how she will do it. All these questions in her mind. What do you want to say to them? Focus on changing the mental images that you have built for yourself. जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया I am confident, I am not helpless, नहीं बोलना है, I am courageous. So when you start focusing on the positives and you do it intentionally, पहले नहीं होगा. कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे, साइकिल एक ही दिन में नहीं आता है, स्विमिंग एक ही दिन में नहीं आती है, यू हैव टू कीप डूइंग इट. तो जब ये मेंटल इमेजेस भी चेंज कर दोगे, इट विल ऑटोमेटिकली वैनिश एंड you will have opportunities that you wouldn't even think of. तो कुछ affirmations हैं जो आप women को बताना चाहो कि what they use it every day in the morning. मैं क्या यूज करती हूँ वो बताऊँ? Yes, so I think confidence आ गया है मेरे अंदर, touch wood, and रहना चाहिए. But I am confident तो definitely बोलना चाहिए क्योंकि confidence matter करता है to carry yourself, to speak anywhere, everywhere. One is a prayer that I do. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So it means unintentionally, intentionally, any mistakes that happen in your life or anything that is making you weaker, you apologize for that thing and you accept the world with love. No. And when you see everything with love, we are nothing but love. So when you give that radiance and joy and that love to everyone, you'll be the receiver. Definitely. Do you ever feel the pressure of balancing family, career and womanhood? Don't ask. I think वो सबका ही struggle है. वो हम करते रहते हैं. हाँ. Multitaskers हम हैं. Yes, but जितना ज़्यादा complain मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है. But जितना जल्दी complain करना बंद कर दोगे ना, उतनी life easy हो जाएगी. I think crib करना बंद कर देना चाहिए कि. We should not be more complaining. हाँ, मैं हूँ वैसे थोड़ी सी nagging. बैलेंस करना बिकॉज देन वो टेम्परामेंट कंट्रोल करना कि यार क्या है, मुझे ही क्यों करना है सब कुछ, वो वाली फीलिंग जब आती है तो आई थिंक इट स्टेज फॉर अ व्हाइल एंड इट गोज अवे बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड दैट ठीक है तो है ना, मम्मी चाहिए तो मम्मी चाहिए तो यू कांट हेल्प इट. आई थिंक हमारी कन्वर्सेशन से डेफिनेटली जो भी वुमेन ये देख रही हैं दे विल डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड एंड दैट इज द मोटो ऑफ दिस टॉक शो. You planned it very well. Thank you so much. It's just flowing. Yeah. या आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको लगा नहीं बस अब नहीं होगा, यू जस्ट ऑलमोस्ट गिव अप एंड उसके बाद आप फिर फायर बैक किया आपने, ऐसा कोई इंसिडेंट? बहुत सारी चीज़ें हैं जब ना ओवरवेलमिंग हो जाती हैं लाइफ में, हम बैलेंस करते रहते हैं सब चीज़ों का, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. एक वो रील भी आई थी ना फनी सी कि you're asking women to do skincare also, yoga also, and then strength training also, and then keep maintaining the friendship goals also, maintaining the family balance also. So I think वो women के अंदर imbibed होता है, although seems like a joke but होता है. और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जब मेरे लिए भी लाइफ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है और मेरा मन करता है कि बस अब छोड़ दूँ, बट द नेक्स्ट डे आई वेक अप एंड आई जस्ट से हो जाएगा. सो आई थिंक आई एम कंडीशन टू से दिस फ्रेज एवरी सिंगल मॉर्निंग. और एक बहुत ही मैं इतनी ज़्यादा आई वुड कॉल माई सेल्फ अ सेल्फ मोटिवेटेड वुमेन और करेज कि I remember when I was shopping in the market when I got a call and that my father is not keeping well. I went back home. He was no more. Okay. Irrespective, it was quite shocking. I was in tears for good long time. But I think I came back to my classes in 2 days time. Just after 2 days? Yeah, after 2 days. Because my work is something that gives me happiness and I'm just not ready to give up irrespective of any failure in life. तो जब आपने
सोच लिया ना कि बस करना ही है, you don't want to give up, तो कुछ भी हो जाए, I don't think so anything can be called more tragic than losing your parents. So I haven't stopped then. I did not stop then. तो अब तो क्या ही रुकना. I think women को strong headed होना it's very important. I think हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है. I think vision हमें clear रखनी चाहिए. रुकना नहीं चाहिए. शबी, आपने मास्टर्स करी है फ्रॉम द कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके, जो कि टॉप 50 वर्ल्ड वाइड, इट्स वेरी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. तो आज का जैसे यूथ है, दे आर लाइक बैचलर्स हो गई तो बस अब बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि हमें मास्टर्स के लिए भी जाना है. तो व्हाट डू यू थिंक, आपका एक्सपीरियंस मास्टर्स के साथ कैसा रहा, और आपको ऐसा कभी लगा नहीं यार बैचलर्स तक इनफ था, मैंने ऐसी मास्टर्स करी? तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब नॉट इवन 0.01% दैट आई रिग्रेट बीइंग इन कार्डिफ. एक्चुअली that city, that exposure of studying in a foreign university has given me so much so that it's whatever I am today, it's because of that. क्योंकि आप मास्टर सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं जाते, वो आप एक एक्सपोजर के लिए जाते हो जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है इन योर थॉट्स, इन योर फीलिंग्स, इन हैंडलिंग योर इमोशंस. तो नॉलेज तो मिल ही रही है, दैट्स द बाय प्रोडक्ट, बट जो उसके साथ जो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है. आई हैड अ गुड time in Cardiff. I stayed in London also for doing an internship as a reporter. तो वो जो पीरियड था, I was living all by myself without any friends, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो फिर फ्रेंड्स होते हैं, and that's the best time that you can ever have in life. और उसके बाद भी I've stayed independently. जब अपने आप के साथ रहने का टाइम आता है ना, that's where you learn, that's where you grow. और मास्टर्स I would say कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि बस वही टाइम है जिसमें आप भाग नहीं रहे हो, जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को, और आगे तो जिंदगी में भागना ही है. तो दिस इज जो आजकल की जनरेशन है, जो वांट टू जस्ट डू बैचलर्स एंड स्टार्ट विद देयर स्टार्टअप्स. एक एक्सपीरियंस ज़रूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा जो वो कुछ भी नहीं सिखा सकता. सो आई थिंक मास्टर्स इज़ अ रिजुविनेटिंग, इट्स एन एनर्जाइजिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ, और वो आपको लाइफ लॉन्ग साथ रहने वाला है. आई थिंक आज की जनरेशन को इसके बारे में शैवी से बेटर कौन ही बता सकता है दैट यू शुड परस्यू मास्टर्स. मैं ना ये बताती हूँ, मेरे में ना कभी गट्स नहीं थे कि मैं खुद से अपने डिसीजन ले सकूँ या खुद से ट्रैवल कर सकूँ. और मुझे याद है मैं कार्डिफ से पढ़ के आई यहाँ पे, जब आई बिकेम सो इंडिपेंडेंट इन माई थॉट्स. मैं अपनी कॉन्वोकेशन के लिए वापस यूके गई. आई स्टेड इन कार्डिफ. उसके बाद आई वॉन्टेड टू विजिट लंडन फॉर जस्ट लाइक दैट. उस दिन की बात है जब कार्डिफ से आई वेंट टू ब्रिस्टल टू माई अंकल्स प्लेस. उसके बाद मैंने उनको बोला मैं लंदन जा रही हूँ. कहते कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा दोस्त के पास जा रही हूँ. एंड एक्चुअली जिसको मैंने बोल रखा था कि मैं तेरे पास आके रहूँगी, व्हेन आई रीच लंडन शी डिड नॉट टेक माई कॉल. माय गॉड. तो मेरे पास फ़ोन में आई थिंक 10% बैटरी थी, और मेरे पास कोई अकोमोडेशन नहीं थी. रात के आई थिंक 9:30-10 बज रहे थे. आई वॉकड द स्ट्रीट्स, आई मैसेज्ड वन पर्सन. चलो थैंकफुली तुम्हें वो लक इतना बुरा नहीं था कि आई फाउंड समवन इन लंडन हुम आई न्यू वेयर आई कुड स्टे. बट उसने बोला मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने बोला मेरे फ़ोन की बैटरी डाई होने वाली है, अगर मेरा फ़ोन ना मिले तो मैं यहाँ पे मिलूँगी रात को. सो आई थिंक 11-11:30 बजे द पर्सन फाउंड मी एंड आई वेंट टू हर प्लेस फॉर द नाइट स्टे. बट मेरे को ना 1% अपने आप पे डाउट नहीं हुआ, डर नहीं लगा. सो आई थिंक जो फियर ख़त्म करने वाली बात होती है वो आपकी इंडिपेंडेंस से आपको आती है. सो दैट वाज लाइक, और अब मैं आज सोचती हूँ ना कि मैं ऐसा कर सकती थी, मैंने किया, एंड दैट्स व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ. मुझे ऐसा लगता है कि एक वुमेन जो है वो दुर्गा भी है और वो काली भी है. बोथ द रोल्स वी कैन प्ले. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. हाँ, I hope so. We are capable of doing anything. अच्छा शिवी, हमारे ना शो का एक रूल है that we ask one question. That is, जैसे not just a woman. It's just not only about stories, sharing stories. It's more about labels, about your confidence, how you rise up. So the last question that I want to know from you is, unapologetically Chevy is, because unapologetically is just like without any filters, you are you. It's all about you. I think जो मुझे जानते हैं ना उनको ये पता है कि
मेरे फेस पे एविडेंट होता है कि एंड somewhere some people say that it's a negative point, I don't know, but I always prioritize myself. मेरे दिमाग में second thought आता ही नहीं है मेरे अलावा. Okay, so जैसे करीना कपूर कहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ शायद मतलब मेरे दिमाग में आता ही नहीं सेकंड थॉट कि पहले मैं बाकी सब अच्छा ये भी करना है, तो ये थॉट आता है. सो आई ऑलवेज थिंक कि मेरे अंदर क्या होगा, मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैंने क्या पहनना है, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या करना है. सो आई थिंक मेरी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द लाइफ सर्कमस्टांसिस. आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ एंड आई इन्वेस्ट good in myself and I believe that whatever I decide for myself is right for me. और अगर गलती होती भी है तो I own it. I proudly take it. So just in a single sentence, unapologetically Chevy is. Complete the sentence. Fearless. Fearless, yeah. You are. That's good, yaar. I think it's a अगर woman is fearless ना, ये इससे बड़ी blessing कोई नहीं है आज की women के लिए. डर लगता था बट धीरे धीरे लाइफ ने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया. एंड चैलेंजेस इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. फियरलेस लाइफ एक्सपीरियंसेस ही बनाती है तुम्हें. बॉर्न नहीं होते तुम किसी भी क्वालिटी इंस्टिंक्ट को लेके. सो यू हैव टू बिल्ड अप ऑल दीज इमोशंस. आई थिंक जो ये बोलते हैं मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, इट्स बस ऑल मेंटल. हाँ मेंटल गेम है. जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया वो होना बंद हो जाएगा. होना बंद हो. दैट्स ट्रू. Chevy, बहुत मजा आया. लव Thank you for inviting me. It was a pleasure to be your first one. Cheers. Cheers. Cheers to many more. Yeah, many more. Chevy, it's been so lovely chatting with you. You are not just inspiring, you are so real. In short, you are a powerhouse in every sense. I can say that you are the perfect blend of grace and grit.